मेरा ख्याल ये है कि रशिया और सऊदी अरेबिया का जो इस सब्जेक्ट पे यानी आप समझ लें ओपेक की तरफ से सऊदी अरब बिकॉज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल और रशिया उधर, तो दोनों ने whether it was an ego or whether it was purely a professional decision that if you will not reduce, we will not reduce the production. So it continued for a number of forced reasons. And then, of course, as Mr. Trump says that he intervened and tried to convince both the parties, and the parties came up with a reduction of production of about 10 million barrels per day. But that was, I think, too little, too late. Coronavirus had an impact like never before. The last time we saw recession in the world was when in 2008, September, Lehman Brothers, then almost all bank in America, जो पूरी उनकी industry, not industry, the whole system was on debt in the sense that people borrow money for car, for house, for where their assets, etc., and then pay through this. That totally collapsed when it reached to a certain level. So we went into recession, and that was a very big recession. It had impact on all industries, and particularly it had great impact on shipping industry. For example, I just give you that PNSC bought one of the ship which was for $72 million in July 2008. And of course, neither we in Pakistan nor anybody else in the world had any idea what is coming 1 month later. And in September 2008, आप सोचें कि क्या हुआ? Cape size ship, which you know, one of the biggest ship in the dry cargo, it was $150 million a piece. एक रात में 155 मिलियन से 50 मिलियन पर पीस आ गया. बाय वन गेट टू फ्री. तो हम जैसे लोगों ने कहा भाई वो टू फ्री वाले तो दे दो, वो बाय वन तो बाद में करेंगे. Similarly, the freight rate came down, and of course you would know that BDI, yani Baltic Dry Index, which governs the earning in a sector of dry sector में जो earning होती है, हर एक चीज का एक index होता है, तो उसका जो number उस वक्त था 2008 जुलाई में, that was an all-time high in the history. It was at 10,500 figure. So this was the highest figure of earning in dry sector, for example. In one night from 10,500, it came down within matter of days to below 1,000. Below 1,000. And the same thing today, and could not recover in the last 12 years, and today it stands at 742 points. So you can imagine how recession had played and affected all segment of industries, especially shipping, and this is one just example I wanted to give you. So coronavirus, you know, now if we focus ourselves onto fuel, जहाज चल नहीं रहे हैं, रोड पे ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही है, ट्रक चल नहीं रहे हैं, और ट्रेनें चल नहीं रही हैं, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्रीज आर एट लोवेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो भाई तेल कौन इस्तेमाल करेगा? और जब कोई तेल इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर वो जो तेल प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ जाएगा? तो वो जो तेल है उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया इनटू वेरियस ऑयल मार्केट्स इन द वर्ल्ड, और सबसे ज्यादा इफेक्ट आया, सब पे आया.
सबसे ज्यादा इफेक्ट आ गया अमेरिकन और कैनेडियन मार्केट, WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या कैनेडियन इंटरमीडिएट। ये दो एरियाज ऐसे थे कि जो फ्यूचर की बाइंग हो रही थी मई के लिए, 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को वो डेडलाइन आ गई कि भाई किसने किसने खरीदना है, किने किने जाना है बिल्लो दे घर, टिकट कटाओ तो लैंड बनाओ। तो वो टिकट कटाने लैंड बनाने में जो बायर था ना, उसने कहा मैं क्यों खरीदूं। दो रीजन है, जब माल बिक नहीं रहा तो मैं खरीद के कहां रखूंगा। पूरी दुनिया का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऑलरेडी फुल हो गई थी, इसलिए कि 1 जनवरी 2018 को प्राइस ऑफ 1 बैरल ऑफ ऑयल वाज $61, और पीछे चले जाएं 10 साल तो $160 में भी गया, ठीक है ना। 2010 में $160 पर बैरल, और 1 जनवरी 2018 में $60। 1 जनवरी 2020 में कितना, $20 या $22। तो ये तो बड़ा क्लियरली डाउन आ रहा था, और पीछे से कोरोना वायरस आया, उन्होंने थे चले हो और लेके बैठ गया। उसने कहा अब इस्तेमाल करके दिखाओ, और हर आदमी बता रहा है जी हाथ धो, ये नहीं कह रहा हाथ पानी से धो, हाथ तेल से भी धो लो, कोई बात नहीं। तो इतना साला तेल भाई कहाँ जाएगा, वो खर्च ही नहीं हुआ, और वो सिचुएशन ये आ गई कि वो -37.37 चले गए। बोथ कैनेडियन एंड द अमेरिकन क्लोज बाई है ना विसिनिटी में, हम तो लेते नहीं है उनसे। पाकिस्तान जो है वो WTI नहीं लेता, वो ब्रेंट से अपने आप को करता है, दुबई क्रूड से करता है, अरेबियन क्रूड से करता है। उस वक्त भी जब वहां -37.36 और सो था, कि क्रूड ऑयल इस इलाके में, पर्शियन गल्फ में, वाज एनी टाइम अबव 15-16 से फिर भी ऊपर था। आज सुबह तो वो 12 पे आ गया, तो तकरीबन 11 पे आ गया, लेकिन ये सब फ्यूचरिस्टिक था। तो अब लोग पूछते हैं कि भाई सारे पाकिस्तान को, वेदर डिपेंड्स यू आर इन अपोजिशन और इन गवर्नमेंट, वो भाई माइनस हो गया है, तो भाई ये तो जीरो कर दो, पेट्रोल पंप पे जाओ, 50 लीटर पेट्रोल डलवाओ, उससे कहो भाई 100 रुपए हमें दो, यही होगा ना। मगर ये सिर्फ क्रूड ऑयल फ्यूचर उसमें हुआ है कि सेलर ने सोचा कि यार इंडस्ट्री तो बंद नहीं कर सकता, कंटिन्यूअस पंपिंग है, ऑफशोर ड्रिलिंग है, तेल में निकाल रहा हूं, तो मैं बंद कर दूंगा तो मुझे जब रीस्टार्ट 1 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा, जब भी होगा मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आई एम रेडी टू गिव ऑयल फॉर फ्री, बल्कि जो लेगा उसको हर बैरल पे $37 फ्री दूंगा। तो ऐसा यहां नहीं होना था, इसलिए नहीं होना कि यहाँ 5 रिफाइनरी हैं, 2 तकरीबन चुप करके सोई हुई हैं कि भाई काम ही कोई नहीं है तो की करिए, वो खरीदार ही नहीं है। हमारी रिफाइनरी तकरीबन 11 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती थी, और वो रिफाइनरी इस पूरे महीने में अभी तक कोई किसी किस्म का क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं किया, फॉर ए वेरी गुड रीजन। उनके पास खुद जगह नहीं है रखने की। भाई अगर क्रूड ऑयल ले लें कहीं रख के रिफाइन करके, फिर प्रोसेस्ड ऑयल रिफाइन करके रखा हुआ है, वो ले लो भाई, बैठे हैं, हर माल मिलेगा, चाना कोई आए और ले जाए, ना कोई आया और ना कोई ले गया, अब कर लो कमाई। वो तो मुझे शेर याद आ रहा है कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, ये शेर याद आ रहा है। कौन खरीदेगा, तो वो किसी ने नहीं खरीदा। बल्कि ऐसा होता है कि पाकिस्तान में जब क्रूड इंपोर्ट होता है तो उससे प्रोसेस फ्यूल बनाती है रिफाइनरी, और रिफाइनरी एक्सपोर्ट भी करती है।
कोई एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, उसकी वजह एक और भी है कि दुनिया की तमाम शिपिंग को आईएमओ ने डायरेक्ट किया दैट फ्रॉम 1 जनवरी ये जो डीजल है, ये जो फ्यूल आप निकाल रहे हैं, इसमें सल्फर कंटेंट सिर्फ 0.5 होगा। अभी तक क्या बना रहे थे? सल्फर कंटेंट विथ 3.5%। कोई खरीदारी नहीं है, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। और वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, कर लो जो करना है। तो ये हिसाब किताब रहा। नाउ व्हेन यू कम टू वेरी वेरी स्पेसिफिक्स के भाई पाकिस्तान में एनर्जी की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में आईपीपी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान में शिपिंग हमारी क्या इस्तेमाल कर रही है, और पाकिस्तान की जो शिपिंग थी अगर कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो अल्लाह ताला खैर करे, तो क्या हाथ बांध के वो भी बैठ गए हैं? क्या वो एक ऐसी इंडस्ट्री जो पिछले 20 साल से, it's a great honor for me to tell you, not because I've been there 7 years. It's a great honor and matter of satisfaction and happiness for you, me and everybody in Pakistan. कि सारी दुनिया की इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली मैंने कितना एम्फेसिस दिया है 2008 के बाद से आज तक की जी शिपिंग इंडस्ट्री बड़ी मारी गई है, और बड़े बड़े सूरमा और बड़े बड़ी कंपनियां नौकरी बंद करके चली गई हैं। PNSC has been earning continuously for last 20 years without fail more than 2.5 billion net profit after tax. It's a great thing for Pakistan to do. Hats off to these people who serve there still. Very nice. चलें, तो अभी अगर आप स्पेसिफिक्स पे आए तो पाकिस्तान की एनर्जी जो है वो 3 तरह की है। पाकिस्तान क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान प्रोसेस्ड ऑयल इंपोर्ट करता है। व्हेन आई से प्रोसेस्ड ऑयल, इट मींस डीजल, इट मींस पेट्रोल, इट मींस मोगैस, इट मींस जेट फ्यूल, इट मींस मैनी। तो 11 मिलियन के करीब क्रूड ऑयल की इंपोर्ट, 12.5 मिलियन ये पर ईयर है इसकी प्रोसेस फ्यूल की इंपोर्ट, और तकरीबन 3-4 मिलियन की LNG की इंपोर्ट। ये चीजें थोड़ी बहुत अब चेंज हो रही हैं, क्योंकि पहले आईपीपी जो थे वो डीजल पे चलती थी, उनके जो जनरेटर्स थे, अब वो मोस्टली LNG पे चलती। बड़ी बात इस गवर्नमेंट ने की कोरोना वायरस के रेफरेंस से, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल बंद कर, टू बेयर मिनिमम। Import of processed fuel, this is a very important thing. Import of processed fuel, which was to the tune of 12.5 million annually, for the time being, 1 महीने से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो हमारी रिफाइनरी यही प्रोसेस्ड फ्यूल बनाती हैं, और हम इनको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। जब तक ये जो चीज प्रोडक्ट बना रही हैं पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल करो, अगर बच गई तो एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। फर्क क्या पड़ेगा? क्रूड आएगा, रिफाइनरी इस्तेमाल होगी, वैल्यू एडिशन हम करेंगे, अपने लोगों को हम देंगे विदाउट ए रनिंग कॉस्ट के भाई अगर हम यही प्रोसेस फ्यूल बाहर से मंगाएंगे तो उसमें 1 मिनट में तो समझने की बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो नेट यूजर को महंगी मिलेगी। तो वो जो क्रूड आया और रिफाइनरी ने रिफाइन किया, इसको अगर डायरेक्टली दे दें यूजर को तो वो उसको सस्ता पड़े। तो वो ये 2 बड़े अच्छे एक्शन लिए गए। और वाइल ऑन द PNSC सब्जेक्ट, ये भी मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान for the last many years
सिर्फ 15% टोटल कार्गो उठाता है अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के कोई 100 मिलियन टन है एनुअली, और उस 100 मिलियन टन में मैक्सिमम जो उठाता है पीएनएससी वो 15%, 85% ऑफ द टोटल कार्गो। और जब उसकी सब डिविजन करें तो एनर्जी में यानी प्रोसेस फ्यूल में और एलएनजी में 100% जो है वो बाहर से आता था, और उस पर हम 5 से 6 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर सिर्फ फ्रेट की मद में खर्च करते, टैक्सी का किराया भाई। तो ये बहुत सारे फोरम में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोगों ने, those who are interested in this, and government decided and directed PNSC फॉरेन क्रूड ऑयल कैरियर भी और खरीदो, फॉरेन प्रोसेस्ड ऑयल टैंकर भी खरीदो, ताकि ये आप खुद सोचो कि यार 6 बिलियन हमने लिया है लोन आईएमएफ से, स्प्रेड ओवर 6 years। Here we are paying $6 billion सिर्फ फ्रेट की मद में। क्वेश्चन है कि क्या ये पैसे बचा सकते हैं हम? जवाब आएगा यस। यार अगर जवाब यस में है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 रुपया खर्च नहीं करना, तो क्यों नहीं कर लिया? No money is to be spent by government of Pakistan to do this. PNSC is a non-budgeted organization, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है भाई। एक और मजे की बात सुनाऊं, जरा सी इंटरेस्टिंग है और बड़ी काबिल फख्र है। 1979 में PNSC बनी थी और अंटिल ईयर 2000 यस वो ऐसे ही करती रही जैसे आजकल PIA करती है या रेलवे करती है या स्टील मिल करती, कोई डिफरेंट नहीं था। रोजाना सुबह उठ के अखबार में खबर लगी होती थी, अरे भाई इसको तो प्राइवेटाइज करो, छुट्टी करो। एवरी डे 2000 में एक चेंज आया, और वो क्या चेंज था? स्टॉक एक्सचेंज में 2000 में PNSC के शेयर की वैल्यू थी 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपी 50 पैसा। भाई साहब आप बड़े समझदार लोग बैठे। विद इन 1 year after taking certain action by the head of the organization, from 1 rupee 50 paisa, within 1 year it went to 150 rupees per share। वो कहीं ना कहीं सर काम कर रहा है, ये नहीं है कि बस सब के सब मामला ही खराब है। तो ये यार बहुत ही जबरदस्त था, और उस दिन से लेके 2000 से आज 2020 का गेम हो रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं हुई। रिसेशन भी आया 2008 का, जो मर्जी आया, बड़े बड़े 30 मार खान शेर के बच्चे, बहुत बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन। तो ये है भाई सूरत हाल के। अब चूंकि क्रूड ऑयल नहीं मंगा रहे, प्रोसेस्ड ऑयल नहीं मंगा रहे, तो भाई ये इनके जहाज फिर कोई और काम शुरू कर दिया है क्या इन्होंने? मतलब आप सोचें फिर पैसे कैसे कमाएंगे? वेरी वेरी वाइजली दे हैव पुट ऑलमोस्ट 85% of their all asset being utilized at the international level, and anytime earning more. So alhamdulillah, इस positive tone में I want to bring it here and for a common man tell you कि भाई ऐसा नहीं है कि WTI -37 हो गया है। कॉमन मैन के लिए यही है कि कोई इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ -37 नहीं आएगा। इम्पैक्ट ऑफ कोर्स 11, 12, $13 पर बैरल हो गया है जहां से हम लेते हैं, वो आएगा।
और उससे बहरहाल फ़ायदा होगा। और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितने पैसे कम करेगी, उसके बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारी बातें सोच के वो करेगा। ये नहीं कि वहाँ इतना कम हो गया परसेंटेज तो इतना यहाँ भी कम कर दे। बहरहाल दैट इज समथिंग फॉर अब ओवरऑल इकोनॉमी के लिए माई लास्ट 1 मिनट और सो। आज के अखबार में भी आएगा, कहाँ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डॉलर का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है। वो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा डॉलर हम एक रेमिटेंस के थ्रू कमाते हैं। और रेमिटेंस कहाँ से आती है, गल्फ से या यूएस से। अब अगर आप ओवरऑल सिचुएशन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान देखें तो इसको बड़ा डेलिकेट किस्म की ज़रूरत है। आई एम श्योर दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर दे आर डूइंग इट। आई एम मिस्टर नोबडी, आई एम रियली नॉट ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू टॉक टू मच अबाउट इकोनॉमी। मगर ये देख लो एक्सपोर्ट से टोटल पैसे कितने मिलते हैं और रेमिटेंस से कितने मिलते हैं। एक्सपोर्ट तो तकरीबन पिछले महीने के मुकाबले में 9% कम हुई, यानी 1.04 बिलियन मार्च में एक्सपोर्ट हुई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.4 1.3 ऐसा। और पैसे कहां से आते थे, रेमिटेंस से आते थे। 26 बिलियन डॉलर रेमिटेंस से आते थे। रेमिटेंस कौन बेचता था, वो लोग बेचते थे जो गल्फ में हैं या अमेरिका में हैं, यूएई में हैं, यूरोप में। इन सारी जगहों में कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब रिड्यूस हो रही है और हो गई है तो जो लोग भेजने वाले थे वो भी कम हो जाएंगे या उनके भेजे हुए पैसे कम हो जाएंगे। अल्लाह न करे बहुत सारे नौकरी से जाएंगे, सही है ना। तो एक वो कमी आएगी और दूसरी बात हमारी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बड़ा सेगमेंट ऑफ एक्सपोर्ट वो ऑब्वियसली कम होगा, सब दुनिया का होगा। तो जो टाइम्स अहेड हैं वो बहुत टफ हैं। ये नहीं है कि बस फ्यूल कम हो गया तो आईपीपी को कम पैसे देने पड़ेंगे और फ्यूल प्राइसेस कम होंगे और पेट्रोल गाड़ी में कम पड़ेगा तो हम बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इन दो चीज़ों को देखें कि पैसे आते कहाँ से थे, उनमें कमी आएगी तो बड़ा डेलिकेट हो जाएगा। ये सही है कि भाई हमें अभी आईएमएफ ने थोड़े और पैसे दे दिए हैं, हमारे लोन्स को डेफर कर दिया है, लोन की रीपेमेंट को डेफर कर दिया है, हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, बाद में देना पड़ेगा। इट विल प्रोवाइड सम ब्रीदिंग स्पेस, इज ऑल राइट, बट इन द लॉन्गर रन, इन 1 ईयर टाइम, 2 ईयर्स टाइम, अगर एक्सपोर्ट कम होगी जो होगी और अगर इंपोर्ट ऑफ रेमिटेंस कम होगी जो होगी तो टोटल बास्केट में जो पैसे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कमी की तरफ। डेलिकेट बैलेंस हैज टू बी। थैंक यू सर। इसमें सर मेरे एक दो सवाल हैं। एक तो सर, अगर ये सिचुएशन जो इस वक्त जो डिमांड की सिचुएशन और ये अगर 2-3 महीने इसी तरह परसिस्ट करती है तो फिर क्या सिचुएशन ओवर ग्लोबल लेवल पे भी क्या होगी और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या होगी, कोविड की भी सिचुएशन और ये ग्लोबल ऑयल मार्केट की भी सिचुएशन अगर इसी तरह परसिस्ट करती है। दूसरा ये चीज़ सर कि जब हमारे पास हमारी एक तो लोकल प्रोडक्शन कितनी है और हम कितना मौजूदा लो डिमांड के अंदर कितना अपनी प्रोडक्शन के ऊपर रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है तो हम खरीदने के लिए हमें वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम खुद पे कितना रिलाय कर सकते हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देखिए, चाइना 14.2% की जीडीपी ग्रोथ से बढ़ा 10 साल पहले, इंडिया 11%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड 5%। यानी 2008 की पहली अक्टूबर को
जो जीडीपी ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड में डिप आया वो था -4%। जीडीपी ग्रोथ का नेगेटिव था वर्ल्ड का -4% 2008 में। और अगर अब इस दफा रिसेशन आता है जो अराउंड द कॉर्नर है, this percentage of -4 will go further down, which will have a direct bearing on the productivity. Already प्रोडक्टिविटी को IMF ने कहा है कि 23% प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइनीज जीडीपी, बल्कि पूरे एशिया की उसने कहा है जीडीपी ग्रोथ विल बी नियर टू 0। आपको पता है ना, बिफोर कोरोना वायरस जो जीडीपी ग्रोथ की प्रिडिक्शंस थी वो 7% फॉर इंडिया, 6% फॉर चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो आपको पता है नीचे ही होता है, वो इतना ज्यादा तेज नहीं होता। इमेजिन कि नाउ टुडे इंडिया इज क्लेमिंग कि वो तकरीबन 2% उसका जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाएगा, whereas IMF is saying 0%. China in their history for the last 3 decades will come close to 0, and so as others. तो डिमांड एंड सप्लाई की जो एक रेशियो आएगी जैसे 2008 में आई थी, वो बहुत नीचे आ जाएगी। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा और उस इकोनॉमिक मेल्टडाउन का ह्यूमन बीइंग पे जाहिर बात है बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेलफेयर स्टेट हैं, जो कंट्रीज वो सरवाइव करेंगी डिफिकल्टी के साथ, जैसा कि वो आज बड़ी अच्छी तरह कर रही हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और वेलफेयर स्टेट, आपको पता है कि तकरीबन हर चीज़ मुफ्त है। और वो अब लाइक फॉर एग्जांपल यस्टरडे ओनली कनाडा ने ये ऑर्डर इशू किया जो हर मुल्क ने नहीं किया, कि हर स्टे होम you will receive at least $2,000 a month, और उस 2000 में जाके खरीदारी करें, कम पड़ेंगे तो और दे देंगे इंडिविजुअली, एंड many months to come stay at home. Can India, Pakistan और China और even America do that? अमेरिका में 22 मिलियन पीपल, पिछले 50 साल में इतना लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी नहीं रहा। ट्रम्प के जमाने में एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर हुआ। ऑब्वियसली व्हेन 22 मिलियन विल बिकम अनएम्प्लॉयड और वो सोशल सिक्योरिटी पे आ जाएंगे, तो जो जो गवर्नमेंट होगी वो इसके अलावा और क्या कर सकेगी कि वो अमाउंट, वेरी मीगर अमाउंट उनको दे जो जिसको सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है। And one of the reason for this is only yesterday orders being issued that green cards are on hold. No more green card, because the moment you give green card to somebody, फिर आप उसको वो भी सोशल सिक्योरिटी का वो हकदार बन जाता है। पाकिस्तान में जिस तरह 12,000 रुपए इतने सारे लोगों को दे दिए, ज़रूरत थी, गरीब थे, क्या हम इसको ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस फॉर 6 मंथ कर सकते हैं? क्या 8 अरब रुपए हर महीने मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवर इंक्रीजिंग नंबर इन देयर कंप्यूटर, ये बहुत मुश्किल काम कर दिया है। बहुत उम्दा बात है। ऑफ कोर्स कॉमन मैन विल अप्रिशिएट, तो फिर दुआ करने की पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान में ये चीज़ इससे ज़्यादा ना बढ़े, अल्लाह करे, और इंडस्ट्री खुले जैसा कि खुल गई है। मैंने उसको पहले भी कहा कि भाई थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई है। इंडस्ट्री जिन्होंने कभी फॉलो नहीं किया कि उनके वर्कर ग्लव पहने, मास्क पहने, सेफ्टी बूट पहने, फलाना करें, ये तो कोरोना और नो कोरोना, दिस हैज टू बी डन। अरे फैक्ट्रियों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। एक कमरा हॉल बना लिया, मशीन लगा दी, अल्लाह न करे कुछ हो, कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं। तो ये चीज़ों से मुझे उम्मीद है कि एक आम आदमी जो वर्कर है फैक्ट्री का या ज़राअत का या कंस्ट्रक्शन का या कहीं का,
हमारे यहाँ तो अल्लाह बेली करके ना वो अब 21वें फ्लोर पे खड़ा होता है, रस्सी तक उसने बांधी नहीं होती, हेलमेट और सेफ्टी बूट की क्या बात करते हैं। ये चीजें सिस्टम में आ जाएंगी एट ए कॉस्ट विच आवर पीपल वर नॉट रेडी टू स्पेंड ऑन। ये तो बेकार की चीजें हैं यार। कभी आज तक ऐसा हुआ है 100 में एक आदमी अल्लाह न करे छत से गिर के मरा है? ऐसा नहीं है। Difficulties had for every country in the world, more so on developing country, more so on the unregulated economy. तो ये डिफिकल्टी तो हमें फेस है। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया that you provided me an opportunity to talk to you people and really it was a pleasure. आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Thank you very much. अस्सलाम।